নমস্কার দর্শক, সংবাদ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদে আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজ সারাদিন দোল উৎসব নিয়ে মেতে রইল সারা ভারতবর্ষ, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়। এখন দোল উৎসব এবং হোলি উৎসব এই দুটোকে মিলেই কিন্তু দুদিনের এই উৎসব কিন্তু পালন হয়। বসন্ত উৎসব কেন করব? বসন্ত উৎসবের যে মহিমা, সেই মহিমা কিন্তু সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে গেছে। এই দোল উৎসব মানে একে অপরের সাথে মিলন, একে অপরের সাথে গলা মেলানো এবং একে অপরের জন্য যে আমরা প্রত্যেকের তরে, সেই জিনিসটা বোঝানো যায় এই দোল উৎসবের মধ্য দিয়ে। এই দোল উৎসবের মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা দেখলাম আজকে যে দুটো ঘটনা, যেটা একটা ঘটনা দেখা গেল যে যেখানে নিজেদের মধ্যে মারামারি চলছে, নিজেদের মধ্যে বাক বিতণ্ডা চলছে, তর্ক চলছে, রীতিমতো ঝামেলা চলছে। আর অন্যদিকে দেখলাম যে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি মানুষ, তিনি বলছেন যে এই রং খেলাটা কতটা প্রয়োজনীয়তা আছে, কতটা আন্তরিকতা আছে, এবং এই আন্তরিকতার সাথে যদি আমরা গলা মেলাই তাহলে কতটা শান্তি লাগে। আসুন দর্শক, আমরা দুটো ভিডিও আমাদের কাছে এসে পৌঁছেছে, সেই ভিডিও আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরতে চাইছি। আমরা আমাদের কমেন্ট বেশি করব না, আমরা দেখাতে চাইছি যে বর্তমানে সারা ভারতব্যাপী যে দোল উৎসব, সেই দোল উৎসবের দুটো চিত্র। একটা হচ্ছে যে দেখুন কিভাবে নিজেদের মধ্যে নিজেরা ঝামেলা করছে, আর একটা দেখুন যে একটি সম্প্রদায়, বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষ, তারা কিভাবে গলা মেলাচ্ছেন এই রঙের সাথে, রং মিশিয়ে দিচ্ছে যেন একে অপরকে। আসুন দুটো চিত্রে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি, দেখুন। রং মাখাবে, রং মাখা মানে গালে মাখা, ওরা যেখানে সেখানে রং মাখা। তাহলে তুমি ওইভাবে ঠিলবে, তুমি এইভাবে ঠেলবে, ঠেলাঠেলি করবে। আর কেউ মাখায় না, আর কেউ রং মাখায় না। ভিডিও মানে ফেমাস হতে যাস? আরে ভাই ভিডিওটা কোথায়, যে তুই যে কুকিতে করছিস না, সেটা জাস্ট রেকর্ড করছি, ঠিক আছে? ওকে রং মারছিস না, তুই হাত দিবি না, হাত দিবি না। গানা দিচ্ছিস আমাদের তুই গায়ে হাত দিচ্ছিস কেন? তো ভাই আমাদের বাড়ি এসেছে, আমাদের আত্মীয়, ঠিক আছে? ভাই আমাকে তো চিনিস তোরা, আমাকে বল কি হয়েছে, বল তুই শোনা যা, কি হয়েছে আমাকে বল, কি হয়েছে তোর? রং মাখাচ্ছি ওরা, রং মাখাচ্ছি। এখানে নাকামচু করে নাই কেউ, ভাই হাই পারোস না, তোদের দোষ আছে, হাই পারোস না, তোদের দোষ আছে। কি হয়েছে বলো, কি হয়েছে বলো, কি হয়েছে বলো? আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, এদিকে চেনো তো? পাড়া ছেলে, এইখানেই বাড়ি, এইখানেই বাড়ি। আমাকে চিনিস তো? আমাকে চিনিস তোর পাশে বাড়ি থাকি। তা ওরা রং মাখাবে, রং মাখা মানে গালে মাখা, ওরা যেখানে সেখানে রং মাখা। তুই টাচ করছিস ভাই, একটা কথা বলবো? এমনিতে মদ খেয়ে রয়েছো তোমরা? মদ খেয়েছি তোর কি রে? তুমি আসো না, তুমি আমাদের সাথে আসো, তুমি আমাদের সাথে আসো। ফোন কর না ভাই, আই তো ক্লাবের ছেলেগুলি নিয়ে ছেলেগুলি গন্ডগোল করছে। এইখানে দাঁড়াবি, ঠিক আছে? এখানে দাঁড়াই বাপের ছেলে হয়ে থাকলে এবার তাড়াতাড়ি আই।
হ্যাঁ ফোন করো তাও এই তো ব্যাকের মুখে যাচ্ছি। দোল একটা হচ্ছে আনন্দ করার সময়, রং লাগানোর সময়, ঠিক আছে? তো সবাই আমরা খুশি মনে রং লাগাই, রং মাখি। তবে যে জিনিসটা আমাদের সামনে ঘটেছে সেটা মানে একটা মানে খুবই খারাপ বিষয়। আর শেষ অবধি ভিডিওটা আমরা কন্টিনিউ করতে হয়নি। আমাদের পাড়ার ছেলেপিলে আসলে বারণ করলো, মানে আমার পাড়ার ছেলেপিলে বারণ করলো, ওরা এসে গন্ডগোলটা মিটিয়ে দিয়ে গেল। ঠিক আছে, ওরা একটু ড্রিঙ্ক করেছিল বলে তার জন্য আরো কিছু বলিনি, যে হয়তো ড্রিঙ্ক করে হয়তো বুঝতে পারিনি এরকম বললো। ওরা সরি টরি লাস্টে বলেছে, বাট ভিডিওটা করতে বারণ করেছিল পাড়ার ছেলেপিলে, তার জন্য আর করা হয়নি। এবার আমারও হাতে খুব লেগেছে, আয়নারও পায়ে লেগেছে। এবার আমার খুব খারাপ লাগছে, আমাদের বাড়িতে এসেছে অনেকদিন পরে, এবার গন্ডগোল হয়ে গেল। আমি সরিয়ে নিতে চাইছিলাম, না না রক্ত লেগেছে এমনি হালকা, রক্ত রং লেগেছে, মাথা ফাটেনি তো, না মাথা ফাটেনি। আনন্দ করার জন্য যে ফেস্টিভ্যালটা আমরা পালন করছি সেটা আনন্দ হিসেবে নিই, কাউকে হ্যারাসমেন্ট না করে, কারোর ক্ষতি না চেয়ে। তো সবসময় ধ্যান রাখবে যাতে সবাই ভালো থাকে। তুমি কিছু খারাপ করবে, তোমার জন্য কিন্তু আরো 10 জনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। অবশ্যই मस्जिद के बाहर खड़े होकर के होली खेलूंगा मुसलमानों के साथ में। डंडा नहीं मेरे हाथ में रहेगा, तुम्हारे तरह डंडा, लाठियां, सरिये, बंदूक, गोली नहीं, गुलाल हाथ में हो, गुलाल। इसी गुलाल के साथ खेलूंगा। शिकल देख लो, पीछे कट्टर हिंदू नाम है। ये रंग लगने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो कहते हैं ना, जो फतवा देते हैं कि रंग लग जाएगा तो चमड़ी काटी जाएगी, जहन्नम में जाओगे, मैं उससे दावे से कहता हूँ कि तुम दिखा दो किसी किताब में कि ये रंग लगने के बाद हमारा ये हाल होगा। हमने इसे लगा दिया, इसने हमें लगा दिया और हम ऐसे गले मिल लिए। होली को लेकर ही मैं चर्चा कर रहा था, लेकिन आपको देखकर दोनों को, क्योंकि इनकी वीडियो बड़ी वायरल होती है, हिंदुत्व के लिए बात करते हैं, आपका समझ में नहीं आ रहा कि आपने ये रंग क्यों लगाया हुआ। देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे भारत की जो संस्कृति है, जो यहाँ के रीति रिवाज है, जो यहाँ की सभ्यता है, हमारे कुछ लोग जो फतवा दे दे करके रोज आए दिन कुछ ना कुछ बात कर करके उस संस्कृति, उस अपनापन से हमको दूर करते जा रहे हैं। लेकिन हम तो इसी धरती पे पैदा हुए, बचपन से ये हमारे साथ खेला कूदा बड़ा, एक थाली में खाए। आज अगर होली का त्यौहार आया, ये भाई मेरे पास आ गया ये गुलाल लेकर के, कह रहे मुन्ना खान कहाँ हो यार, ये गुलाल लगा लो। हमने इसे लगा दिया, इसने हमें लगा दिया और हम ऐसे गले मिल लिए। इसमें इतनी खूबसूरत तस्वीर कैमरे पे मैं देख पा रहा हूँ, लेकिन ये खूबसूरत हमारा पड़ोसी, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ खेलने वाला, हमारे एक मोहल्ले का, हमारे एक गांव का, तो हम इससे, इसके त्यौहार से हम दूरी क्यों करेंगे। ये रंग लगने से हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जो कहते हैं ना, जो फतवा देते हैं कि रंग लग जाएगा तो चमड़ी काटी जाएगी, जहन्नम में जाओगे, मैं उससे दावे से कहता हूँ कि तुम दिखा दो किसी किताब में कि ये रंग लगने के बाद हमारा ये हाल होगा, तो मैं तुम्हारी जिंदगी भर गुलामी करूंगा। अरे तुम क्यों बांट रहे हो? एक बंटवारा तो तुम करके भोग रहे हो। एक बंटवारा वो हुआ था जब तुम पाकिस्तान मांग लिए थे, वो एक बाप के 4 बेटे में से 2 बेटे पाकिस्तान चले गए। 2 बेटों ने कहा कि हम यहीं रहेंगे, इसी घर में रहेंगे, इन्हीं भाइयों के साथ रहेंगे। तो तुम इन भाइयों के साथ रहो ना, मिलकर रहो ना, नफरत क्यों। खूबसूरत बात बोली, और ये तस्वीर देखिए कितनी खूबसूरत है। और शायद मौलाना कौसर हयात भी ये तस्वीर देख रहे होंगे, जिन्होंने अनुज चौधरी जो सीईओ हैं संभल के, उनके बयान को लेकर बड़ी आपत्ति जताई और डीजीपी को चिट्ठी लिख दी कि इनका तबादला कर दिया जाए। ये तस्वीर देखिए कि ये मुसलमान है, रोजेदार है और इस्लाम को फॉलो करते हैं, मस्जिद से आ रहा हूं, कोई खोल के आ रहा हूं। सीईओ चौधरी, अनुज चौधरी ने यही बात बोली कि जिनको आपत्ति है रंग से, वो घरों से बाहर निकले। तो सीईओ अनुज चौधरी का जो तबादले की बात मौलाना कौसर हयात ने कही, उनको 2 शब्द क्या बोलेंगे। देखो, उन जनाब को ये चीज मालूम नहीं कि उन्होंने कहा क्या। सबसे बड़ी बात तो उस जनाब को इस बातों पे ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सिर्फ एक बात की, इस पॉइंट को तो आपने देखा नहीं कि जिनको रंगों से तकलीफ है, जिनको रंगों से तकलीफ है, वो घर के अंदर है। वाकई सही बात है। हमारे में से 4 लोग हैं, 4 हिंदू भाई भी ऐसे हैं, उनको रंगों से तकलीफ होता है, वो रंग खेलने नहीं आते, लोग जबरदस्ती लगाते हैं तो लड़ाई झगड़ा भी हो जाती है। लेकिन जब झगड़ा होता है तो फिर भी तो एक साथ होते हो, फिर भी तो एक साथ होते हो। तो रंगों से तकलीफ है तो वाकई आप घरों में रहो। बिल्कुल, जैसे ये रंग लगा है, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपकी मुसलमानी पे थोड़ा सा भी इफेक्ट पड़ा? कोई, हम जो मुसलमान पहले तो वैसे आज भी हैं, वैसे तब भी रहेंगे। रोजा खंडित हुआ? कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला इस रंगों से। हम जिस तरीके से अभी पाक साफ हैं, वैसे ही हम पाक साफ भी हैं। इस बहुत बढ़िया चीज है। हालत में बहुत ज्यादा होगा तो इस रंग को ऐसे झटकार करके वजू बना के हम नमाज भी पढ़ के आ सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परहेज नहीं। लेकिन जो लोग ऐसी छोटी छोटी बातों पे फतवा दे करके एक दूसरे को अलग करते हैं, उनके लिए हमारी एक पैगाम है कि आज सीरिया के अंदर जिस तरीके से कत्लेआम हो रहा है मुसलमानों का, क्या वो मुसलमान नहीं है? क्या वो शिया है तो मुसलमान नहीं है? क्या वो वहाबी है तो मुसलमान नहीं है? क्या वो देवबंदी है तो मुसलमान नहीं है? आए तुम जंतर मंतर पे? आया कोई?
कोई मुस्लिम धर्मगुरु हिंदुस्तान का जंतर मंतर पे आया धरना प्रदर्शन करने कि सीरिया में मुसलमानों का खुलेआम कत्लेआम हो रहा है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं खुद इंतजार कर रहा हूँ कि आओ ना, इसके विरोध में बोलो ना। आज हिंदुस्तान के अंदर कोई बात होती है तो तुम तरह तरह की बात करने लगते हो कि हिंदू हमारे दुश्मन है, हिंदू हमें मार रहे हैं, योगी हमारा दुश्मन है, तो मोदी हमारा दुश्मन है, तुम ये कहने लगते हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुमको कि दुनिया के अंदर जिस तरीकों से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, वहाँ कत्लेआम हो रहा है, उसका तो विरोध नहीं करते, उसके विरोध में तो खड़े नहीं होते। आओ ना जल्दर बंदर पे। बिल्कुल, क्या कहना चाहोगे तस्वीर को? मैं भाई साहब को होली की लाख लाख शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और कुछ लोग बोलते तू लगा के दिखा मुसलमानों को रंग, ये देखो भाई, ये देखो। और मैं बता देता हूं, सबसे पहली अगर होली में भारत में खेलूंगा तो मैं अपनी माँ के साथ खेलूंगा, अपनी दादी के साथ खेलूंगा। उसके बाद में सीधे जब इनकी जो नवाज अदा करने के बाद मैं मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाऊंगा। जितने भी मुसलमान आ रहे होंगे भाई अब आपने नमाज अदा कर ली है, अब मैं मस्जिद के बाहर होली खेलूंगा अपने एरिया में। ये चीज आप संभल जाकर क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि वहां तो बड़ा विवाद हो रहा है। हम तो मेवात में भी तो करके आए, मेवात में कितने लोगों ने रोकने की कोशिश करी, हमने करा ना मेवात में जाकर के। और भाई साहब अगर कोई जिस तरीके से चैलेंज करते हैं भाई मेवात आओ, तो भाई बता देना, तावड़ू लल्लड़ मंदिर जहां बोलोगे अपनी जगह पे अपने एरिया में संभल जाएंगे, संभल भी जाएंगे भाई साहब। पुलिस का काम हल्का हो जाएगा थोड़ा सा। सुनो मेरी बात, आप इस चीज को देखो, हाथ को दोनों तरफ से देखो तो यार रोटी खाते हो यार। अगर कोई अन्नू चौधरी जी के बयान का अगर कोई खंडित कर रहा है तो उस बंदे का कैरेक्टर तो देखो, वो कितना अच्छा और कितना सच्चा मुसलमान है। जिस तरीके से बोला सीरिया के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, तो क्या वो आया यहाँ पर किसी मुसलमान भाई अगर भूखा है, परेशान है, हरासमेंट हो रहा है, क्या उस भाई के साथ खड़ा हुआ है? वो अपने मोबाइल का 1% नेट बचता होता, रात को अपने मोबाइल सामने रखा और बक उसने बक दिया जो बोलना है। एक बार अन्नू चौधरी से मिलकर के तो देख, अन्नू चौधरी जी ने क्या गलत क्या बोला है। वो ये बोल रहे जिसको एतराज हो, जिसको आपको लगे कि मेरे को परेशानी खड़ी हो सकती है। अन्नू चौधरी जी वहां पर माहौल नहीं खराब होने देना चाहते। अगर जो माहौल खराब करेगा टांगों पे गोलियां लगेगी, पिछवाड़े पे कील वाले डंडे लगेंगे। खराब ही नहीं होगा अगर आप जैसे मुसलमान भी संभल में हो तो माहौल खराब ही नहीं होगा। हर जगह है, लेकिन कुछ लोगों ने जो है ना, लोगों को दूर कर दिया एक दूसरे से, वो दूर कर दिया। यार बचपन से मेरी 50 से ऊपर की उम्र हुई, बचपन से मैं एक अकेला मुसलमान 200 हिंदू घरों के बीच में रहने वाला, और वहाँ पे मैंने होली भी खेली, दिवाली भी मनाई, सारे काम करता आया, तो भैया हमें तो कहीं कोई तकलीफ नहीं। अब नफरत क्यों नहीं फैलेगी? जब भजनपुरा करावल नगर शास्त्री पार्क मौजपुर में, यहाँ पर बटलाओ जामिया अब्दुल फजल के अंदर और खड्डा कॉलोनी के अंदर जब इतने 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू रहता है, उसके घर पे पर्चा कैसा लग जाता है? और अगर जब पर्चा हिंदू घर पे लग जाता है तो असली और अच्छे सच्चे मुसलमान जो अल्लाह और मोहम्मद में बिलीव रखते हैं, वो मुसलमान क्यों नहीं आते उस पर्चे को हटाने के लिए? क्यों नहीं आते? जब एक बहन के 35 टुकड़े हुए मुसलमान व्यक्ति ने कहा, तो वो मुसलमान कूनी आए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर के शुक्रवार की नमाज अदा करके कूनी आके रोड पे इन्होंने विरोध करके उस मुसलमान को फांसी दो। जब दिल्ली के पांडव नगर में एक मुसलमान बच्ची का बलात्कार होता है तो कूनी आए मुसलमान कि उस मुसलमान को भाई बलात्कारी को फांसी दो। जब फरीदाबाद के अंदर 3.5 साल की बच्ची का एक मुसलमान जब धौच के मुसलमान ने बलात्कार कर दिया, तो कूनी आए वो मुसलमान जो अल्लाह में भरोसा रखते, जो कुरान में भरोसा रखते, जो मोहम्मद में भरोसा रखते हैं। मुसलमानों में भी भाई साहब सुनो बहुत फर्क है। एक मुसलमान इस भारत का असली नागरिक है, एक मुसलमान जो है भारत में कट्टरपंथी जो किराएदार पल रहा है, और उसकी तैयारी भारत से नहीं कॉलोनियों में से, गलियों में से, मार्केटों में से, मंडियों में से निकालने की चालू है। फरीदाबाद के अंदर 15% मुसलमान निकलवा दिए गए। ऐसा नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जैसे नेता उनके साथ हैं। साथ में रहना कहाँ साथ है, कैसे साथ में है? भाई साहब आपको दिक्कत परेशानी हो ना तो संजय सिंह जी को फोन करना कि भाई मेरे घर में ना मेरी माँ बीमार है, जरा इलाज करवा दे। अरे अगर वो 10 रुपए की दवा भी दे संजय सिंह, कौन सा? भारत के मुसलमानों का सबसे पहला रखवाला उसका पड़ोसी होता है, अगर वो चाहे किसी भी कौम का हो। कोई नेता नहीं आएगा, सबसे पहले ये पड़ोस में भाई रहता है ना, तो ये आएगा ठीक सीना ठोक करके। तो मुसलमान आज भारत के अंदर जिस तरीके से फले फूले हैं और जो तरक्की किए हैं ना, तो ऐसे हमारे हिंदू भाइयों की वजह से। आपकी वीडियो और जिन लोगों ने इस एहसान फरामोशी को नफरत में बदल दिया, अलग कर दिया कि रंग पर जाएगा तो काटे जाओगे। अरे बेवकूफो, ये रंग किस चीज का तुम्हें पता भी नहीं है। ये रंग मोहब्बत का है, ये रंग उस पैगंबर का है जिसको आग से बचाया गया, और बचाने वाला वही ईश्वर, वही परमात्मा था। ये रंग उसी के नाम पे चल रहा है। तुम तो भूल गए उस पैगंबर को, तुम भूल गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, लेकिन भक्त प्रहलाद के रूप में ये आज तक याद रखे हुए। आज तक वो होलिका जला करके हर साल वो होली मिलन दहन मनाते हैं उसी पैगंबर का। अरे तुम क्यों बांट रहे हो इंसानों को? ये इंसान सब एक माँ बाप की संतान, एक जगह से आए हुए हैं, तुम इनको इस नफरत में क्यों बांट रहे हो? क्या बात याद दिला रहे थे आप? मैं ये बात याद दिला रहा था आपकी आपकी एक वीडियो डली है, और कुछ 2-3 दिन पहले एक मुसलमान है मेवात का, उसने मेरे को एक चैलेंज करा था
कि भाई अगर तूने, इसलिए मैं इसी चैनल को ढूंढ रहा था, उसने बोला कि तू एक भी मुसलमान को भारत में गुलाल और रंग लगा करके दिखा। तो भाई ये ले देख, ये मैं सामने सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ भाई, सबसे पहले मैं लगा रहा हूँ। किसने और मैं बता रहा हूँ, होली वाले दिन वीडियो डालूंगा भाई साहब, मस्जिद के बाहर खड़े होकर के होली खेलूंगा मुसलमानों के साथ में, मस्जिद के बाहर खड़े होकर के। डंडा नहीं मेरे हाथ में रहेगा, तुम्हारे तरह डंडा, लाठियां, सरिये, बंदूक, गोली नहीं, गुलाल हाथ में हो, गुलाल। इसी गुलाल के साथ खेलूंगा, शिकल देख लो, पीछे कट्टर हिंदू नाम है मेरे भाई, ये ठीक है? प्रेम का रंग है, इससे नफरत मत करो, इससे नफरत मत करो, इससे नफरत मत करो, ये प्रेम का रंग है, अब यहाँ पर ये प्रेम का रंग है, इससे नफरत मत करो। भाई ये व्यक्ति खड़ा हुआ यहाँ पर, इससे भाई पूछ रहे हम तेरे से मुसलमान है या हिंदू है, पूछा भाई मैंने, भाई इस भाई से पूछा कि तू भाई मुसलमान है हिंदू है। भाई साहब आपसे मैंने पूछा कि तुम भाई मुसलमान हो हिंदू हो, भाई मैंने आपसे पूछा कि आप मुसलमान हो हिंदू हो, क्या चल रहा है, कौन है? नफरतियों को टारगेटेड करेंगे जो इस देश में, भारत में नफरत करते हैं। पत्रकार साहब आप कैसे बच रहे हो? आपको भी बिल्कुल, आपसे पूछा मैंने आपका रिलीजन को, आप जाट हो, गुजर हो, बनिए हो, बावन हो, आपका रिलीजन पूछा, आप क्रिश्चियन हो, जैन हो, बौद्ध हो, मुसलमान पूछा मैंने? बिल्कुल नहीं पूछ करके लगा देंगे, जो बिन रंग के दिखेगा भारत में लगाएंगे। मतरा बरसाने के जो मुसलमान है ना, बरसाने के आसपास जितने मुसलमान रहते हैं, सब मुसलमानों ने सबसे पहले कम से कम 6 किलोमीटर दायरे का जो प्रोटोकॉल है, मीट की दुकानें बंद करी, और 15 किलोमीटर के बाद कह रहा नहीं भाई 6 किलोमीटर तो सरकारी वो है, कानूनी रूप में। 15 किलोमीटर दूर की, भाई साहब परसों में महिता में 15 किलोमीटर दूर तक के मुसलमानों ने मीट और कसाई और सारी दुकानें बंद कर दी। ये समझ आता है, कह रहे भाई हम भी तुम्हारे साथ हैं, हम भी होली खेलेंगे। तुम कौन से वाले, ये कौन से वाले मुसलमान है? अगर आप होली खेलना ऐसे शुरू कर देंगे तो आम आदमी पार्टी के जो नेता संजय सिंह है, उनकी दुकानें बंद ना हो जाएंगी? देखो ये लोग अपनी दुकान को चालू रखने के लिए ऐसी बातें करते हैं, जो अपनी दुकानदारी इन मुद्दों से चलाते हैं वही लोग ऐसी बातें करते हैं। वो सभी धर्मों में होते हैं, हमारे भी धर्म में है, इनके भी धर्म में है, उनके भी धर्म में है, लेकिन हमें उनकी बातों से क्या लेना देना। ये भाई अगर मेरे पास प्रेम से वो रंग लेके आता है, कहता है अरे मुन्ना खान कहाँ हो, ऐसे गुलाल लगाता है, तो हमें एतराज क्या है भाई? हम तो इससे गले मिलकर ऐसे बातों से तो लेने देना है, वो आपके लिए ही आते हैं कि हम रंग नहीं लगने देंगे, रोजा खराब नहीं होने देंगे, आप जाके रंग लगवा लेते हो। खराब नहीं होने वाला मेरा रंगों से, रोजा हमारा खराब नहीं होने वाला है रंगों से, हमारे नमाज खराब नहीं होने वाले रंगों से, क्योंकि ये नापाक चीज नहीं है, ये रंग जो है नापाक नहीं है, और सूखा चीज वैसे भी पाक होता है। अगर गीला कपड़े पे रंग भी पड़ जाता नहीं होगा तो हम कपड़े बदल के संजय सिंह कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेंगे अगर ये ऐसे मुसलमान होली खेलना शुरू कर देंगे तो? ठेकेदार है, वो जातीय धर्म के ठेकेदार बने हुए, पेड़ भर कर, पेड़ भर कर नहीं रहेंगे। ये संजय सिंह जैसे व्यक्तियों को एक बार जरा भेजो तो सही, धरातल पे भेजो एक बार, ऐसी जगह पे करेंगे। अरे भाई साहब उन्हें सबसे पहले गुलाल लगाएंगे, गुलाल पे एतराज करा, फिर उनके फट्टे ही बजाएंगे भाई संजय सिंह के। ऐसे संजय सिंह के तो मुल्ला जी फट्टे बजा देंगे, कैसे हमारे भाईचारे में, कैसे मैं गंगा जमुना तेजी में, कैसे तू भैया बात कुचल रहा है, कैसे दखलंदाजी कर, तू है कौन? तू है कौन? दिक्कत हिंदुवादी बयानों से जो सीओ ने चौधरी ने दिया, वो कह रहे गुंडा है, वो तो लफंडर है। कोई बात नहीं भाई साहब, ऐसे अगर संजय सिंह जैसे कीड़े मकोड़े बतेरे आए, ठीक है, निकल के आते हैं ये बारिश के समय पर, ये फ्लो होता है नाली गटर का, ये उस टाइम निकल के आते हैं, जब बारिश दोबारा होती है ना तो उसी में चले जाते हैं बह करके। बहुत शुक्रिया आप दोनों। দর্শক দেখলেন, মিলনের উৎসব, দোল হচ্ছে মিলনের উৎসব, হোলি হচ্ছে মিলনের উৎসব, একে অপরের সাথে মেলবন্ধন করে এই উৎসব, অথচ এই উৎসবকে ঘিরেই কেউ করছে ঝগড়া আর কেউ করছে মিলন। এই দু ধরনের চিত্রই কিন্তু আজকে সারাদিন উঠে এসছে এবং বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আরো প্রচুর সংবাদ উঠে এসছে, কিন্তু যেগুলো আমরা গুরুত্ব মনে করেছি যে এই দুটো সংবাদ আপনাদের সামনে তুলে ধরা প্রয়োজন, তাই আপনাদের সামনে আমরা তুলে ধরলাম। যদি আপনাদের কোনো বক্তব্য থাকে, কোনো কমেন্ট থাকে, অবশ্যই আপনারা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন। আর দেখতে থাকুন পরবর্তী সংবাদ আবির্ভাবে। আমার নাম বিশ্বজিৎ পাল, সংবাদ আবির্ভাবের জন্য।